Welcome back, students. Today we are going to start the 13th chapter of class 10th mathematics as per the new book. This chapter deals with surface areas and volumes. This is quite a interesting and easy chapter. Lot of visualization is required. आपके मन में एक images बनने चाहिए. Or if you have good visualization of the problem, you can convert a question into a diagram and use the right formulas. Then this becomes a very easy chapter. As you can see in this picture, this chapter is going to deal with the cuboids and cubes and spheres, both hollow and solid, and cylinders and cones, and another special thing called frustum of a cone. This is Manish Gulati from Happy Model Higher Secondary School, bringing you this advanced technology lesson on surface areas and volumes. So let us begin by looking at the syllabus. In this chapter, we are going to look at the basic formulas of surface area and volumes, of the basic figures. The second thing we are going to look at is the surface area of combination of solids, which means say एक स्फीयर है या एक आधा स्फीयर है कॉल्ड हेमीस्फीयर. हेमीस्फीयर के ऊपर एक कोन आ गया, तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर्स. So in 8th class also students have studied about spheres and cubes and cuboids, but in class 10th we are going to have combination of solids. We are going to also talk about volume of a combination of solids. We are going to learn about how to melt a solid of one particular shape and convert it into other kinds of shapes. And the fifth and new point is going to be cone and its frustum. Frustum क्या होता है? We will see when we reach at that particular point. But these are the 5 areas that we have to study in this chapter: surface areas and volumes. To begin with, let us revise the basic formulas of the solids that we are going to be dealing with. The first solid that we are going to be dealing with is a cuboid. Cuboid, students, is like a shoebox. जूते का डब्बा is a cuboid. Your room in which you are studying now, your classroom, your house room, they are all cuboids. That means they have a length, they have a width called as a breadth, and they have a height. Because they have length, breadth and height, therefore they also have a volume. So what I would like you to do is that understand cuboids, then pause the video, make this diagram and write the formulas, then go to the next slide. Okay, that's the strategy of working in this chapter. One question at a time. एक क्वेश्चन समझो पहले, उसको समझने के बाद पॉज करो, उस क्वेश्चन को पीछे जाके रिवाइंड भी कर सकते हो, फिर से भी देख सकते हो, और फिर अपना डायग्राम बना के अपनी कॉपीज में नोट कर सकते हैं. ओके, दैट इज द स्ट्रैटेजी. सो फर्स्ट थिंग is what is the volume of a cuboid. You might be knowing from 8th class of itself that the volume of a cuboid is length into breadth into height. But what is length into breadth? Length into breadth is the shaded area, that is the area of the floor, right? Okay, so we have a volume of a cuboid. We said length into breadth into height, but length into breadth, students, is also the area of this floor, the bottom, जो shaded area है. So हम length into breadth को ये भी तो बोल सकते हैं area of the base into height. That's the second formula for volume of a cuboid. Many times आपको area of the base दिया होता है, तो आपको सिर्फ height से multiply करना है, तो आपको मिल जाएगा volume. Now
क्यूबॉइड की क्या खास बात होती है? इट हैज गॉट हाउ मेनी फेसेस? इट हैज गॉट 6 sides and how many vertices? 1 2 3 4 corners कितने हैं? 4 plus 4 8 corners. What is the surface area of a cuboid? Second formula to be remembered and noted. हम देख सकते हैं जैसा ये फ्लोर है वैसी तो रूफ भी होगी, तो फ्लोर और रूफ का दोनों का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, सो ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ। ऐसे ही ये जो हमारी राइट वाली दीवार है ब्रेथ इंटू हाइट, ये वाली भी ब्रेथ इंटू हाइट। सो वी हैव let me take a pen please. Okay, so I have this area and this area, both are breadth into height. अब हम देखते हैं फ्रंट वाला एरिया, ये वाला एरिया। ओके, ये एरिया, ये एरिया है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट। और वैसे ही ये पीछे वाला भी होगा, ये पीछे वाला, ये पीछे वाला, ये भी होगा लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू हाइट भी होंगे दो, तो दो कॉमन ले लिया हमने, तो टोटल सरफेस एरिया इज ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ये वाला, प्लस लेंथ इंटू हाइट, राइट। दैट फर्स्ट फेज, फर्स्ट आगे वाला है, ऐसा। तो these are the total surface area का formula. Okay, now third formula that is important is the lateral surface area. कई बार आपको बोलेंगे ना व्हाइट वॉश करना है, फ्लोर को तो व्हाइट वॉश नहीं करते हैं, और मैं भी लेटर से रूफ को भी नहीं करना चाहते, सिर्फ दीवारों को उन्होंने पेंट करना है। तो पेंट करना है वॉल्स को, तो ये जो साइड्स का सरफेस है ना, वी कॉल दिस एज द लेटरल सरफेस एरिया। सो ओवरऑल टोटल सरफेस एरिया में से फ्लोर और रूफ कैंसिल हो जाएगा। तो फ्लोर और रूफ क्या था हमारा? तो ये था लेंथ इंटू ब्रेथ, ये वाला हर माइनस कर दो, तो क्या बचा आपके पास? ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। दिस कॉल्ड द साइड सरफेस एरिया और द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ cuboid. Okay, 3 things we have studied. You can pause the video and note down before you move ahead. The second object that we are going to talk about is called a cone, just like an ice cream cone or a conical tent, आपका cornetto cone, वो वाला कोन। ओके, सो इसके अंदर कोन बच्चों क्या होता है? कोन एक ऐसा फिगर है जिसका बेस इज सर्कुलर, इट हैज सम रेडियस स्मॉल आर एंड इट हैज अ हाइट h, उसका कुछ हाइट है h, और ये स्लांट हाइट है l। तो h and r are perpendicular to each other, and therefore since they are perpendicular to each other, therefore this will obey the Pythagoras theorem, है ना। L, H and R, relation between L length, slant length, height and the radius of the circular base, it obeys the Pythagoras theorem, which is hypotenuse का square L square is equal to base का square R square plus H square। एरिया ऑफ द बेस, ये जो रेड वाला शेड किया मैंने, रेड एरिया, सर्कुलर बेस, एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया, ये ऑरेंज वाला जो एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज गिवन बाय द फॉर्मूला पाई आर एल, पाई आर एल। Now, what would be the volume of a cone? Volume of the cone is 1/3 of pi r square h. So, pi r square is the area of the base into 1/3 of h. 1/3 of h, that gives me the volume of a cone. Total surface area. Total surface area मतलब ये नीचे का रेड वाला एरिया और साइड्स का ऑरेंज वाला एरिया। The total surface area will be the area of the base pi r square plus the curved surface area is pi r l. So pi r square plus pi r l. Pi r कॉमन ले सकता हूँ, दोनों के पास एक पाई और एक r, तो दोनों के पास है। So pi r into
यहाँ से आएगा r plus l. Either you use this or you use this, both are the same. So total surface area, 5 things we have learned about a cone. Area of the base, pi r square. Relation between slant height L, vertical height h and radius r is the Pythagoras theorem. Curved surface area, the orange part is pi r L. Volume of the cone is 1/3 of pi r square h. Total surface area is pi r square plus pi r L. Okay. So if you have understood, please pause, draw the diagram, color it up in your copy, and write it in your copy, please. Cylinder. Now the cylinder क्या होता है? This is like a powder का डब्बा, Pond's powder, cylindrical powder का डब्बा, जो भी shapes एक ड्रम की तरह है. A drum is a cylinder. राइट सिलेंडर तब बोलते हैं उसको हम जब नीचे का बेस का एरिया और ऊपर के टॉप का ढक्कन का एरिया इज द सेम एंड दे आर दीज टू सर्फेसेस, दिस वन एंड दिस वन, दे आर पैरेलल टू ईच अदर. दोनों का रेडियस r है, ऊपर वाले का भी r है, नीचे का भी r है, और उनके बीच में जो ये जो पैरेलल प्लेन्स हैं हमारी ग्रीन ब्लू वाली, इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हाइट बोलते हैं h. Because the base is a circle, the area of the base and or of the top, ऊपर का ले लो और नीचे का ले लो, दोनों का एरिया कितना होगा? pi r square, area of a circle. Second thing we talk about is the curved surface area, गोल वाला surface area, you know, ये जो मैंने येलो शेड किया है, curved surface area. Imagine करो आपके पास एक ऐसा पॉन्ड्स का पाउडर का डब्बा है, उसको आप यहाँ से ऐसे काट देते हो, एक साइड से ना बाहर से बाउंड्री काटते हो, खाली डब्बा है, और उसको फिर आप खींच के खोलते हो ना, आप सीधा करते हो इसको. जब सीधा करोगे तो आपके पास एक रेक्टेंगुलर शेप आएगी जिसकी हाइट जो है वो h होगी, और इसकी लेंथ क्या होगी? खुलेगा तो लेंथ तो इसके बेटा यहाँ देखो, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ और ऐसा घूम कर इधर तक जाऊं और खोलूं, दिस इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, एंड सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला तो होता है 2 pi r. तो ये लेंथ विल बी 2 pi r, हाइट विल बी h. देयरफॉर द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर इज गोइंग टू बी 2 pi r into h. लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया का फॉर्मूला लगाया, लेंथ 2 pi r, चौड़ाई इसकी h, तो 2 pi r h. This is the formula for the curved surface area of a cylinder. What is the total surface area? पूरा सिलेंडर बनाना हो, ऊपर से ढक्कन बंद, नीचे से बंद, साइड भी गोल, तो दो एरिया सर्कल हो जाएंगे. पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर विल बी 2 पाई आर स्क्वायर, एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, ये फॉर्मूला हमने लिखा 2 पाई आर एच. 2 पाई दोनों के पास है, एक r भी है, तो I can take 2 pi r common. I will get 1 r from here and I'll get 1 h from here. So total surface area is going to be equal to 2 pi r into r plus h. That's the total surface area of the cylinder. Volume of a cylinder. Volume of a cylinder is area of the base into height. Area of the base is how much? Pi r square. So volume of a cylinder is pi r square h. तो यहां पे देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सिलेंडर का बेस भी सर्कुलर होता है, कोन का भी सर्कुलर होता है, लेकिन कोन ऊपर जाके क्या होता है, यहां पर ऐसा बन जाता है कोन. ओके, ऐसा बन जाता है कोन. तो अगर हमारे पास एक कोन हो और एक सिलेंडर हो जिसका हाइट सेम है, तो वी विल फाइंड, और रेडियस भी सेम है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3, है ना. एक ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा, तो कुछ पानी इस एरिया में आएगा, कुछ पानी इस एरिया में आएगा, पानी से भरूंगा, और कुछ एरिया इसमें आएगा. तो जो कोन है उसका जो वॉल्यूम है इज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ
cylinder of the same radius and the same height. So volume of a cylinder is pi r square h. Four things we have studied with you. Area of the top and the base is the same, pi r square. Curved surface area, जो गोल वाला येलो वाला एरिया है, ये वाला मेरा जो एरिया है, इसको खोलूंगा, it will be 2 pi r h. टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला किया हमने, और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला किया, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, पाई आर स्क्वायर इनटू h. So please pause your video here, draw this neat beautiful diagram, write heading also cylinder and note down the formulas. These formulas चैप्टर के स्टार्टिंग में सारे एक साथ होंगे हमारे पास, तो रिवाइज करना आसान हो जाएगा. The fourth thing that we are going to study for now is a sphere. Sphere is like a ball. Ball है ना आपके पास? फुटबॉल इमेजिन करो, टेबल टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल. A ball is a sphere. जो ऊपर का एरिया होता है ना स्फीयर का, कर्व्ड सरफेस, पूरा ही गोल होता है, फ्लैट तो होता नहीं उसका कोई पार्ट बॉल का. तो पूरा का पूरा जो स्फीयर है उसका सपोज रेडियस r है, तो द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 4 पाई r स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज 4/3 पाई r क्यूब. These are formulas you have done in your previous classes. It's a revision for you. So I'm not proving these results because not required. 10th class में हमको इनका एप्लीकेशन सीखना है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड जगहों पर. तो ये फॉर्मूलाज रिवाइज कर रहे हैं हम. सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 4 पाई r स्क्वायर. वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, कितना अंदर लिक्विड आ सकता है इसके अंदर, कितना भर सकते हैं, जगह कितनी है, उसको वॉल्यूम बोलते हैं. That's 4/3 pi r cube. Now I can cut a sphere, an apple kind of a thing, into through its diameter. ऐसे मैंने ये ब्लू वाले एरिया से चाकू से काटा, तो मेरे पास एक हाफ स्फीयर आएगा. A half sphere is called a hemisphere. ऐसा इग्लू टाइप ऑफ, आधा ऊपर का आधा पोर्शन, आधा स्फीयर. What is the curved surface area? पूरे स्फीयर का तो 4 पाई r स्क्वायर है, तो आधे का कितना होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, गोल वाला सिर्फ, that will be half of this. 4 पाई r स्क्वायर का half is 2 पाई r स्क्वायर. वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा, so स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब है, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब. What about the flat surface area? नीचे फ्लैट भी है ना एक, फ्लैट ये वाला ग्रीन वाला. So here that's going to be equal to pi r square. Area of the base is pi r square. Total surface area, area of the base plus the curved surface area. So pi r square plus 2 pi r square, that becomes, students, 3 pi r square. Total surface area of a hemisphere is 3 pi r square. Okay. So a pause here again, draw the diagrams, use a compass, make neat beautiful diagram, and you will get these things. These are to be noted into your copies. Note करें, pause करें, note करें. Let's go to the first example from the book. Example number 1. As you already know, I do everything with you. I do solved examples, I do the unsolved questions, I do everything with you. So मैं सब कुछ करा रहा हूँ, so that even the last student who does not like mathematics, they also do not face any problem. Okay? अगर आपको लगे आपको आता है, आप कर सकते हैं, तो आप मैंने आपको क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, आप इसको पॉज करें, आप खुद ट्राई करें. कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो देखें, पहले एग्जाम्पल्स देखें, फिर आप एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करना. मैथ्स इज लर्न बेस्ट बाय डूइंग मैथ्स. लेट्स डू दिस मैथ्स. एग्जाम्पल नंबर 1 ये बोलता है, फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ अ टॉय टू बी कलर्ड.
हमने एक टॉय बनाया जो इस तरह से है, डायग्राम बुक में ही गिवन है। एक कोन है नीचे से और ऊपर उसके एक हेमीस्फीयर है। इस शेप का एक टॉय बन गया। हमको गिवन है कि रेडियस इसका है 3.5 सेंटीमीटर्स ऑफ द हेमीस्फीयर एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 5 सेंटीमीटर्स। तो आप देख सकते हो अगर ये पोर्शन 3.5 है और टोटल 5 है तो हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, ये वाला हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा? ओके, नो, वंस अगेन द डायमीटर क्वेश्चन इज गिवन पढ़ लेना चाहिए। द डायमीटर ऑफ दिस हेमिस्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर्स। व्हाट वुड बी द radius? Half of 3.5. So this is going to be radius is going to be 3.5 divided by 2. That's going to be the radius. Okay. Now the height of the toy is 5 centimeters. तो अगर हम माइनस कर दें तो हमको मिल सकती है h, 5 minus 3.5 by 2. दो चीजें गिवन है। अब ये टॉय को हमको पेंट करना है तो बाहर से करना, अंदर से तो करना नहीं है पेंट। टॉय बन गया तो बाहर से करना है। तो बेसिकली क्या होगा वो, दैट विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन, ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया, एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। So total surface area of the toy will be the curved surface area of hemisphere plus curved surface area of the cone. That is the formula that we are going to use, concept that we are going to use. सबसे पहले हमने डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट किया। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर विल बी 3.5 by 2 centimeters. We know curved surface area of a hemisphere is 2 pi r square. 2 pi को मैंने ले लिया 22 by 7, r square 3.5 by 2 into 3.5 by 2। कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। क्लास 10th में कैलकुलेटर अलाउड होता है तो आप अपने कैलकुलेटर्स की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इसी बहाने। अदरवाइज बिना कैलकुलेटर के करना चाहो तो मैंने तो बिना कैलकुलेटर के किया। एक 2 से 2 काटा, 735.5 हो गया। आगे तो कैलकुलेटर यूज किया मैंने भी। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने ये ऊपर वाला जो है ना ये ढूंढ लिया, ये पार्ट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। अब हमको ढूंढना है ये वाला पार्ट, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन फ्रॉम डायग्राम वी नो, हमको h चाहिए। हमको मालूम है ये पूरी हाइट टॉय की 5 सेंटीमीटर है। तो हाइट कैसे ढूंढेंगे? हाइट प्लस रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। ये रहा, यहां से लेके यहां तक हाइट प्लस ये हमारा रेडियस। हाइट प्लस रेडियस इज टोटल 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस है हमारा 3.5 का आधा इज 1.75 सेंटीमीटर्स। So height would become 3.25 centimeters. Very good. लेकिन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर इंटू दिस एल। हमको h पता, हमको r पता, हमको l ढूंढना। बताओ कैसे ढूंढोगे, कैसे ढूंढेंगे? राइट एंगल है ना ये? यस, ठीक बोला आपने, पाइथागोरस थ्योरम। So using the Pythagoras theorem in this triangle, we'll get L square is equal to h square plus r square. L square is h square plus r square. H square is 3.25 का square, r square is 1.75 का square। कैलकुलेटर पे स्क्वायर किया, ऐड किया, फिर अंडर रूट लिया। L square is इतना, अंडर रूट लिया तो आया 3.69 सेंटीमीटर्स। इक्वेशन नंबर 5। कैलकुलेटर अगर नहीं है आपके पास, मोबाइल पे भी होता है कैलकुलेटर, आप जरा चेक करिए। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का फॉर्मूला पाई आर एल। पाई इज 22 by 7, आर इज 3.5 by 2, एल अभी भी ढूंढा 3.69। इफ यू सॉल्व दिस कम्स आउट टू बी 20.30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन मिल गया। पहले हमको मिल चुका है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर।
दोनों को हम ऐड कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन नंबर 3 एंड 6 को इन इक्वेशन नंबर 1, टोटल सरफेस एरिया, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया. Okay, so I get total surface area 19.25 plus 20.30, that comes out to be 39.55, और approximately एक single place of decimal तक लाओगे तो this will become 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है बच्चों, पॉज करें, ट्राई करें. रिमेंबर, जैसा मैंने लिखा है यहां पर एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही आपको डायग्राम बनाना है, ऐसे ही वर्ड्स लिखने हैं. जो मैं जैसा जैसा लिख रहा हूं बिल्कुल यही सेम स्टेप्स आपको करने हैं. ओके, गिवन भी लिखना है, सोल्यूशन भी करना है, फॉर्मूलाज भी लिखने हैं, ऐसे ही सब कुछ जैसा मैंने किया है. वर्ड्स भी लिखने हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, इक्वेशन के नंबर्स डालने हैं. दिस इज हाउ मैथ्स हैज टू बी डन इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर. यू कैन गो स्लोली वन बाय वन, थोड़ा सा पॉज कर सकते हैं वीडियो को, पीछे जा सकते हैं, देख सकते हैं मैं कैसे लिख रहा हूं, और आप अपने आप नोट करें. ठीक है बच्चों, लेट्स डू नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2. आज हम 4 एग्जाम्पल्स कर लेंगे. ओके, विल डू द एक्सरसाइज टुमारो. एग्जाम्पल नंबर 2 बोलता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस ब्लॉक. इसको भी पेंट करना है हमने. ये है कैसा, एक क्यूब है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर हमने एक हेमिस्फीयर रखा है. उस हेमिस्फीयर का डायामीटर है 4.2 सेंटीमीटर. ऐसा हमने ऊपर एक हेमिस्फीयर एक रख दिया है उस क्यूब के ऊपर. वी वांट टू नो व्हाट इज द सरफेस एरिया दैट आई हैव टू पेंट. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस ब्लॉक. अब देख सकते हैं प्योर स्फीयर, प्योर क्यूबॉइड, ये तो क्लास 8th 9th में आपने किया है. अभी हम कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स करते हैं. ठीक, तो आइए देखते हैं व्हाट आर वी गिवन. वी आर गिवन क्या है, साइड ऑफ क्यूब L इज 5 सेंटीमीटर्स ईच, diameter of the hemisphere is 4.2 centimeters. To find surface area of this block. Solution. Total surface area will be equal to total surface area of the cube minus, okay, minus, अब ये अगर हमने यहाँ पे रख दिया, देखो ये हेमिस्फीयर रखा, तो ये जो मैंने शेडेड वाला आपको एक सर्कल दिखाया है जिसका डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर है, वो तो छुप गया ना इस हेमिस्फीयर के नीचे. इस वाले पोर्शन को हमको पेंट करना पड़ेगा क्या, ये तो छुप गया नीचे, इसको तो पेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब का में से हमको इस पाई आर स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा, प्लस ऊपर जो इसके कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है उसको हमको ऐड करना पड़ेगा. तो ये फॉर्मूला पहले हमारे मन में आना चाहिए कि करना क्या है, बाद में कैलकुलेशन स्टार्ट करनी चाहिए. तो टोटल सरफेस एरिया इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब माइनस द बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर. अब हम इन तीनों को फॉर्मूलाज लिख सकते हैं. टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, क्यूब का हर एक फेस, हर सब साइड्स L होती है, तो इसका एरिया हो जाएगा L इंटू एल, दैट इज L स्क्वायर. ऐसे 6 फेसेस हैं तो टोटल एरिया हो जाएगा 6L स्क्वायर. माइनस इसको करेंगे पाई आर स्क्वायर, माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर. पढ़ाया था ना अभी आपको हमने, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर कितना होता है, दैट्स 2 पाई आर स्क्वायर. तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं. माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर क्या बचा, प्लस पाई आर स्क्वायर. तो टोटल फॉर्मूला हमारा आ गया, total surface area is 6L square plus pi r square. That's equation number A. Now let us first find the radius of the hemisphere. Diameter is 4.2. We know radius is half of the diameter, that will be 2.1 centimeter. Total surface area of a cube 6L square, that is 6 into 5 into 5, that's 150 centimeter square.
एंड पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1, सॉल्व किया कैलकुलेटर पे तो आया 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर. Let us put equation number 3 6l square and 13.86 pi r square in equation number A. Right? So I will get total surface area of the block will be 150 centimeter square plus 13.86 centimeter square, and that is 163.86 centimeter square. Right? सो अगर आपने डायग्राम ठीक से बनाया है और आपको विजुअलाइजेशन हुआ है क्या कर रहे हैं हम, देन यू आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट चाइल्ड. एग्जाम्पल नंबर 3, ये महाभारत के तीर के जैसा है. हाँ, हमने एक टॉय बनाया. कैसा टॉय है ये? टोटल हाइट इसकी टॉय की कितनी है? एक तीर है, उसकी हाइट है 26 सेंटीमीटर्स और उसमें ऊपर एक कोन है. ये जो कोन है उसके नीचे हमने एक लकड़ी लगाई है. लकड़ी की ये जो येलो वाली लकड़ी है, सिलिंड्रिकल लकड़ी, इसकी हाइट है 20 सेंटीमीटर्स. ओवरऑल हाइट 26, देयरफॉर हाइट ऑफ द कोन इज 6 सेंटीमीटर्स. राइट? द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, जो कोन का जो रेडियस है वो 2.5 सेंटीमीटर्स है. एंड रेडियस ऑफ नीचे वाला सिलेंडर वो कम है उसके, ये येलो वाला सिलेंडर, इसका रेडियस जो है लकड़ी का, येलो लकड़ी का रेडियस इज 1.5 सेंटीमीटर्स. ये हमने ऑलरेडी ढूंढ लिया. 26 सेंटीमीटर्स ओवरऑल हाइट है तीर की, 20 सेंटीमीटर की येलो स्टिक है, देखो 6 सेंटीमीटर का ऊपर वाला कोन का हाइट है. अब ये बोलता है कि हमने क्या करना है, हमने इसको पेंट करना है. राइट? कैसे पेंट करना है? जो तीर वाला पार्ट है ना, कॉनिकल पार्ट है, इसको ऑरेंज कलर करना है. और जो इसकी जो बॉडी है, सिलिंड्रिकल बॉडी, इसको मुझे येलो कलर करना है. तो क्वेश्चन बोलता है कि बताओ हम व्हाट इज द एरिया, येलो एरिया, एंड व्हाट इज द ऑरेंज एरिया. So we need to know the areas. So let us start with the orange part. ऑरेंज पार्ट को देखो तो एक तो इसमें ये उसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन है. उसके बाद नीचे देखो तो नीचे यहां तो लकड़ी आ गई है ना, तो ऐसा पोर्शन होगा, यहां तो लकड़ी का बेस आ गया होगा, येलो लकड़ी का बेस जुड़ गया है यहां पर, जिसका डायमीटर 3 है, बाहर का डायमीटर 5 है, क्योंकि 2.5 का डबल इज 5. तो हमको पेंट करना है कहाँ पे? ये ऑरेंज वाले इस पोर्शन में करना है, ऑरेंज पोर्शन में. ये जो मैंने व्हाइट किया यहाँ तो आएगा नहीं, ये तो ना यहाँ पे, ये तो छुप जाएगा दोनों के बीच में, तो ना यहाँ पर येलो पेंट होगा ना यहाँ पर ऑरेंज पेंट होगा. तो जो बेस एरिया है कोन का वो थोड़ा कम हो जाएगा. बेस ऑफ द कोन ऐसा होगा, बेस ऑफ द कोन में से बेस ऑफ द सिलेंडर का एरिया हम माइनस करेंगे. ठीक बच्चों, पता चला? दिखाई दिया? अब कर्व सरफेस एरिया का ढूंढना है तो हमको क्या चाहिए? हमको तो स्लांट हाइट L चाहिए होती है, L चाहिए ना. तो L क्या होता है? पिछले क्वेश्चन की तरह L विल बी इक्वल टू R, ये है हमारा H. पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, L विल बी इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का अंडर रूट. कोन का बेस का रेडियस 2.5 है, 2.5 का स्क्वायर, हाइट 6 है इसकी, तो प्लस 6 का स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी 42.25 का अंडर रूट, दैट इज 6.5 सेंटीमीटर्स. सो ये जो स्लांट हाइट है दैट इज 6.5 सेंटीमीटर्स. ऑलराइट, ये मिल गया. आओ पहले एरिया ऑफ द बेस कैलकुलेट करें. इतने ऑरेंज पोर्शन का एरिया कितना है? तो बिग एरिया माइनस स्मॉल एरिया, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर डैश का स्क्वायर. आर डैश इज माई
छोटा रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज आर डैश। सो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर डैश का स्क्वायर, पाई कॉमन ले लेता हूं, आर स्क्वायर माइनस आर डैश का स्क्वायर। पाई को इस बार हम क्वेश्चन में गिवन है 3.14 लेना है। क्वेश्चन में जो भी गिवन हो ना 22/7 हो तो 22/7 लेते हैं, 3.14 हो तो 3.14 लेते हैं। ओके, सो 2.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर मैं यूज कर सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 2.5 प्लस 1.5 इज 4 एंड 2.5 माइनस 1.5 इज 1। आसान हो जाता है, कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो 3.14 into 4, that is 12.56 centimeter square. So area of the base of the cone is so much. And what is the curved surface area of a cone? Pi RL 3.14, radius is 2.5 and length अभी हमने ढूंढी यहाँ पर Pythagoras theorem से 6.5. If I multiply this on a calculator, I get 51.025 centimeter square. अब मैं दोनों एरियाज को ऐड कर देता हूं, ऑरेंज वाले को, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस एरिया ऑफ द बेस, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो ऑरेंज एरिया आ गया हमको। अब कितने एरिया को हमने येलो पेंट करना है? येलो पेंट को देखो वापस, कर्व सरफेस एरिया और इसके नीचे का बेस, ये ऊपर वाला तो नहीं आएगा ना। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ येलो पोर्शन विल बी कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ वन बेस पाई आर स्क्वायर, राइट। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। अब की बार रेडियस आर डैश है, हाइट एच डैश है, सो पाई आर डैश कॉमन ले लिया मैंने, यहां से मेरे पास बचा 2h डैश प्लस आर डैश। 3.14 रेडियस कम है ना, इसका रेडियस जस्ट 1.5 है, सो आई हैव इंटू 1.5 इंटू 2h डैश, 2 इंटू 20 प्लस 1.5, 40 प्लस 1.5, 41.5. I calculated on a calculator, I get my yellow area is 195.465 centimeter square, or approximately I can say 195.5 centimeter square. So students, I have calculated both the areas with you, the orange area of the head and the yellow area of the body. फिर से भी आप देख सकते हैं वीडियो को, अगर आपको समझ नहीं आया, अगर आ गया तो अगला क्वेश्चन देखने से पहले इस क्वेश्चन को प्लीज सॉल्व करें, राइट। ये डायग्राम्स बुक में भी हैं, आप अपनी बुक भी अपने सामने रख सकते हैं, बट जैसे मैंने कहा है ना, बुक में पता नहीं जैसा भी लिखते हो, लेकिन जैसा मैं करा रहा हूं आपको, ये लॉजिकल ढंग है करने का। प्लीज डू योर वर्क द वे आई एम टीचिंग यू, ऑलराइट, ओके। So let's move ahead. Fourth example. The fourth example is, हमारे पास एक ऐसा बर्ड बाथ है। बर्ड बाथ क्या होता है? बर्ड्स को पानी पिलाने के लिए कैसा थोड़ा ऊंचा उठाया होता है हमने, सिलिंड्रिकल पोर्शन, और उसके अंदर हमने एक ऐसा कैविटी बनाई होती है, उसमें पानी डालते हैं, बर्ड्स इस पे आके बैठती हैं और यहां से पानी पी सकती हैं। तो हमारे पास एक बर्ड बाथ है। क्वेश्चन में गिवन है टेक पाई एस 2/7। बर्ड बाथ कैसा है? उसका जो रेडियस है ना, वो है 30 सेंटीमीटर्स। तो ये एक हेमिस्फीयर है और बाहर उसके एक सिलेंडर है, और ये जो हाइट है वो है 1.45 मीटर सिलेंडर की। हम इसको बच्चों पेंट करना चाहते हैं। कहाँ पेंट करना है? एक तो हमने इसको अंदर ऑरेंज पेंट करना है, बेस अंदर वाला जो दिखेगा हमको, हमने वो वाले पोर्शंस को पेंट करना है जो लोगों को बाहर से दिखाई देते हैं। अंदर नहीं पेंट करना है, बाहर पेंट करना है। बर्ड को दिखाई देगा, ये अंदर ऑरेंज कलर करेंगे और बाहर हमसे येलो कलर करेंगे। लेकिन हमको इस बार टोटल एरिया ढूंढना है जहां पेंट होना है।
स्टैंड को नहीं पेंट करना है, ब्लैक ब्लैक है ना, ये नहीं पेंट करना है, सिर्फ हमने ये बॉडी, आउटर बॉडी एंड इनर पार्ट ऑफ द हेमिस्फीयर को पेंट करना है. So total surface area is the curved surface area of the hemisphere plus the curved surface area of the cylinder, है ना, ये वाला पार्ट, गोल गोल वाला, ये जो ड्रम का पार्ट होता है, पॉन्ड्स के पाउडर वाले डब्बे का पार्ट होता है, कर्व्ड surface area of a cylinder. We know curved surface area of a hemisphere का formula 2 pi r square and curved surface area of a cylinder is 2 pi r into h. Look at your formulas, आपने कॉपी में लिखे हैं, यही वो फॉर्मूलाज है ना, इनको आप प्लीज 3-4 बार पढ़िएगा और रफ कॉपी में लिखें, आपको परमानेंटली याद हो जाने चाहिए फॉर्मूलाज. शायद आता ही हो पहले से, बट फिर भी फिर से रिवाइज करना अच्छी बात है. नाउ व्हाट इज रेडियस, मीटर में कर रहा हूं तो 30 सेंटीमीटर्स को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज हाइट मीटर में है ना, 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में, ये बड़ा क्या ध्यान रखना इस बात का. जब भी हम कैलकुलेशन करें, या तो सारे सेंटीमीटर में होते हैं या सारे मीटर्स में, एक ही यूनिट होनी चाहिए, तभी हम ऐड कर सकते हैं प्रॉपर्ली. तो मैंने 30 सेंटीमीटर्स को लिख लिया एज 30/100 और 0.3 मीटर. हाइट तो मीटर में ही है, तो रेडियस इज 0.3 मीटर एंड हाइट इज 1.45 मीटर. तो यहां से 2 पाई आर दोनों के पास है, कॉमन ले लिया, 2 पाई आर यहाँ आया आर प्लस एच, तो 2 इंटू 22/7, आर को लिखा 0.3, दिस इज 0.3 प्लस 1.45 एंड दैट इज 1.75. कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पोर्शन टू बी पेंटेड इज 3.3 स्क्वायर मीटर्स. 3.3 square meters. That is the answer to example number 4. In the next class, we will do exercise 11.1. So that is it, students, from me today. Please revise your formulas, note it down in your copy, and I have done all the examples with you. Please use the book also. Keep putting a tick mark on the book. हमने क्या क्या कर लिया. So stay safe, stay happy, and keep learning. This is Manish Gulati signing off from you here today. Bye bye to you.